learn how to get a protection against decay. मतलब क्या है exactly? This is a cow which gives milk. Everyone knows, right? Cow gives milk, and if we keep this milk unused for days, मतलब इसको बिना रेफ्रिजरेटर में रखे, right? और बिना कहीं पर भी रखे, if we just keep it idle, what will happen? It will start decaying. क्या होना शुरू हो जाएगा? It will start decay, मतलब अंदर ही अंदर बांस निकलना शुरू हो जाएगा. All those factors will affect it, right? So what do company do? They definitely generate milk from cow, but after that they convert it into certain forms, right? Number one form is called chena, number two dahi, butter, cheese. All these factor is possible. Why? ये सब factor में क्यों convert किया जाता है? एक ही कारण के लिए. वो कारण क्या है? ताकि वो डिके ना हो जाए और लॉस ना हो जाए. इफ इट गेट्स डिके इट विल बी अ लॉस, राइट? एंड काउ विल बी continuously producing milk, and if it gets decay everything is wasted. Since the process of wasting, we human being have generated a process कि ये decay ना हो, ये waste ना हो, बल्कि we have generated कि इसको ये सब process में convert कर दिया जाए, so that we can sell it further, we can grow it further, and we can preserve milk in these forms. ठीक है ना? This is the process. Why we convert milk to chena, why we convert milk to dahi, why we convert milk to butter, why we convert milk to cheese. This is the same system why we use the protection of our capital as well. What I'm talking about, let's see. We are talking about inflation. Why inflation? Because we have to protect our capital against inflation. That's the only thing we have to protect our capital against, right? Okay. How do inflation works? Now, first of all, what is inflation? समझते. Rise in costing of substances with the decrease in value of money. कुछ भी सामान का दाम एवरी ईयर जो भी बढ़ते जाता है, सामान का दाम तो बढ़ता है बट वैल्यू ऑफ मनी घटते जाता है. दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. दैट एग्जैक्ट फिनोमेना इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. उसी चीज़ को इन्फ्लेशन बोला जाता है. सो इन्फ्लेशन ईट्स अप योर मनी. दिस इज योर मनी एंड इन्फ्लेशन ईट्स इट अप. दैट शुड नॉट बी द केस एग्जैक्टली, राइट? इफ़ योर मनी इज केप्ट आइडल इट विल डिके. अब मनी तो डिके नहीं होगा सिंस इट्स नॉन लिविंग थिंग, सो इट विल गेट इन्फ्लेटेड. मतलब इसका वैल्यू डिवैल्यू होना शुरू हो जाएगा. डिवैल्यू मतलब इसका वैल्यू घटना शुरू हो जाएगा. 100 रुपये का चीज़ आस्ते आस्ते छोटा होना शुरू हो जाएगा. दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन ओवर द ईयर. दैट शुड नॉट बी द केस. जैसे इफ़ यू कीप अ ग्लास ऑफ मिल्क इट विल स्टार्ट डिकेइंग. 2 दिन 3 दिन बाद उसको कोई खा नहीं सकता, राइट? सेम थिंग विथ रुपीज़ ऑफ 100 एज वेल. दैट इज द सेम थिंग विच इज गोना रिपीट. सो let us take an example how inflation works. Everyone knows this. In 1970, 1 cup of coffee used to charge 0.25 cents. Anyone can charge it, 0.25 cents. Now it is charging something around 1.85 cents, right? Which is approximately, a good coffee will be charged 180 200 rupees dollar. The same coffee, same material, only the price is increasing. It's not the price that is increasing, it's the valuation of money that is decreasing. It is the value of money. It is the value of money that is decreasing. Value of money goes down with increase in price. The rising costing of substances is decrease in value of money. Well, that's inflation. Simple. That is inflation. Inflation मतलब और कुछ नहीं, सामान का दाम बढ़ते रहना with the same time value of money घटते रहना. So you as a person, as an investor have to think कि मैं क्या करूँ कि मेरा पैसा इन्फ्लेशन के साथ बढ़ते रहे या फिर इन्फ्लेशन से ज़्यादा बढ़े, right? Most people do not have any idea what they are talking about. They just go and keep their money in savings account. एक ही जगह तो पता है, savings account. Where inflation, let us take an example. What savings account is, how does it works? Okay. Suppose this is 2023. This is 2023. And you have 100 rupees note. A 100 rupees note say you want to buy this USB flashlight, which is costing rupees 100. आप खरीद लोगे. But if you keep this 100 rupees note under your bed, पलंग के नीचे या फिर कहीं पर तिजोरी में अलमारी में रख दो, व्हाट हैपेंस इज दिस 100 रुपीज़ नोट दिखने में तो सेम रहेगा ना. ये दिखने में तो वही 100 रुपये का नोट रहेगा. कुछ डिफरेंस मिलेगा दिखने में? नो, देयर इज नो डिफरेंस. बट द पॉइंट इज देयर इज समथिंग कॉल्ड इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन मतलब क्या है? राइज इन कॉस्टिंग, डिक्रीज इन वैल्यू. तो पैसे का वैल्यू घटा देगा. 7% पर ईयर इन इंडिया इट्स रेटेड. इट्स अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7%. ओके, इफ इट्स 7% a year, क्या होगा? सेम थिंग यू विल बाय विथ 100 रुपीज़, same USB flashlight, but that will cost 107 because inflation सामान का दाम बढ़ा देता है. कोई भी चीज़ भी आप खरीदने जाओगे उसका दाम बढ़ा देता है. Cost of increasing product increases,
cost of any product will increase. See, cost of product gets increases, cost of product generally increases, but the value remains same. दिस इज इन्फ्लेशन, दिस इज द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन. पहले जो मैं 100 रुपये में खरीद सकता था, अभी मैं वही चीज़ 100 रुपये में खरीद नहीं सकता, बिकॉज माई मनी रिमेन एज इट इज़, but the rise of product went up. This is the simple definition of inflation. Hope I am clear. Now suppose you go to savings account, or to open a savings account in a bank. Bank is giving you a return of 2 to 3%, and you have an inflation of 7%. So ये आपका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? मतलब you are having a interest rate of 2%, 7% आपका इन्फ्लेशन है, राइट. 7% आपका पैसा नेगेटिव हो रहा है, and you are adding just how much? 3%. So that is still minus 4%. It's negative. So you are having a loss. Savings account में पैसा रखना लॉस है. That's a simple mathematics. There is no further question to it. Am I clear with it? This is a simple process. जो मैं पिछले साल खरीद सकता था, इस साल 2024 में आके I am not been able to buy. क्यों? 7 रुपये ज़्यादा ले रहा है. अब मैं वही घर में जाके आई एम शाउटिंग एवरीवेयर कि क्या सामान चीज़ भी इसका दाम बढ़ते जा रहा है. दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेशन. Variety reasons to inflation, but that's the process of inflation. That's how it works. Correct? Okay, let us move forward. How does it work? Okay, everyone can tell me कि सेविंग्स अकाउंट में नहीं रखता हूँ, मैं तो फिक्स डिपॉजिट में रखता हूँ पैसा, वहाँ पर तो अच्छा ही लगेगा ना. सब ओके. सपोज आई हैव 1 लाख रुपीज़ and I have invested into fixed deposits. Okay, fixed deposits. Now let us see what happens. Year 2007, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, all to 19. Let's see. The inflation rate is 6.3, 8 every year the inflation rate changes. And the fixed deposit rate, if you can see, the fixed deposit rate of individual year, if you can see out here, आप देख सकते हो exactly कि 2013 में यहाँ तक तो ठीक था, कुछ ऊपर नीचे था. For different banks, the fixed deposit rate will be different and it changes over the time. Okay, 6.39 suppose is the, okay, 10.91 is the inflation rate in 2013, and fixed deposit rate कितना है? फिक्स डिपॉजिट रेट 9% दे रहा है. मतलब ये पैसा के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 9%. अब पैसा डिवैल्यू हो रहा है कितना परसेंट से? 10% से. सो आर यू हैविंग अ प्रॉफिट और डिक्लाइन? डेफिनेटली यू आर हैविंग अ डिक्लाइन. मतलब आपका वैल्यू डिवैल्यू हो रहा है ओवर द टाइम. कितना परसेंट से? 1% से. दैट्स इन्फ्लेशन. लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. इन 2017 inflation was 2.49, or suppose any other year, 2016, see, inflation was 4.94 and यहाँ पर FD दे रहा है 6.90. If you calculate the average, you will always see that inflation is either more than or equals to FD rates. या तो इन्फ्लेशन ज़्यादा है फिक्स डिपॉजिट से, या तो इन्फ्लेशन इक्वल्स टू है फिक्स डिपॉजिट के. मीन्स इफ़ यू हैव a fixed deposit tenure, right, you will not gain a substantial enormous amount. आपका पैसा सेफ रह जाएगा. You can just say 1% अप डाउन के आजू बाजू रहेगा, but it's safe. But you cannot call it safe. Suppose you have 7 lakh rupees in FD in any bank. Suppose SBI में आपका 7 लाख रुपए है and you have made an FD in SBI, right? FD fixed deposit आपने कर दिया. और suppose SBI कोई कारणवश bankrupt हो गया, मतलब निकल गया बिजनेस से, which can be possible. Any company can be possible. Definitely SBI has a good fundamental, which is not possible for SBI currently, but future कौन देखा है. So 7 lakh rupees if you put in and SBI उड़ जाता है, if it gets bankrupt, the only thing you will get from the bank officials, that is 5 lakh rupees. 5 lakh आपको fixed मिल जाएगा. You will get 100% return of 5 lakh, और 2 लाख चला गया. That you can't do anything. Any bank you invest, any bank, no matter whatever the bank is, ठीक है. That is the rule of government, that only 5 lakh, till 5 lakh you will have refunded if you have kept FD in any bank, irrespective of 5 lakh extra जो भी lakhs है. suppose you have invested 12 lakh in FD और वो बैंक उड़ जाता है, मतलब bankrupt हो जाता है, बिजनेस से निकल जाता है, only 5 lakh is safe. So risk is also there with big money. अब कोई बोलता है कि मुझे 1 लाख में रखा हूँ, I have no tension. You don't have any tension. Even if that 1 lakh rupees goes out, you will get that 1 lakh rupees back. Clear? That is the simple technique of FD. So you should understand whether you are investing your money और रिटर्न आपको कितना मिल रहा है. ठीक है. So inflation always gives more than or equals to FD. Okay, let us move to the next sector, कि कहाँ पर रखा जाए ताकि मेरा मिल्क जो है वो डिके ना हो जाए.
आई हैव टू फाइंड माई प्लेस. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग. वहाँ पर मैंने मिल्क का एग्जाम्पल दिया था. हियर वी आर कंपेयरिंग विथ मनी because that's the same thing. So money, we have to find a way to save our money no matter whatever it is. Okay, now let us see next process, that is called bonds. So money हम लोग bonds में डाल सकते हैं. Bonds gives us fixed interest rates. Okay, but again with interest rates, जब interest rate बढ़ता है bond का price गिरता है, और जब interest rate गिरता है bond का price बढ़ता है. So this is also a risk involved. Without understanding factors, if you invest in bonds you can have loss. कोई बोलता है कि bonds तो हमेशा safe होता है. No, everything is risky assets. You have to understand which asset you are investing. People, आदमी लोग का जनरल प्रोसेस क्या होता है कि मुझे कुछ नहीं नॉलेज चाहिए, बस एक बात बोल दे, जहाँ पर रिस्क नहीं है वहीं पर मैं डाल दूंगा पैसा. वैसा कुछ नहीं होता है. देयर इज नो प्रोसेस लाइक दैट. एक ही होता है, तिजोरी के पीछे या फिर अपना पलंग के नीचे. डन. इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, व्हाटएवर यू कीप मनी, देयर इज सर्टेन पोजीशन ऑफ रिस्क. ओके, सो पर्सन हैज़ टू फाइंड कि इन्फ्लेशन के अगेंस्ट में बॉन्ड्स विल गिव यू 10% रिटर्न्स, 11% रिटर्न्स, कोई बॉन्ड 7%, 8% भी दे देता है. इफ इन्फ्लेशन इज अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7%, you have 8%, you still have good gains, right? There are variety kinds of bonds. You have NCDs. We will talk about this in different videos, but I'm just telling you where you can keep your money. मतलब दूध को एक जगह पर रखना है जो डिके ना हो जाए. सिमिलरली पैसा को एक जगह पर रखना है जो डिके ना हो जाए, इन्फ्लेट ना हो जाए, इन्फ्लेशन के चलते नीचे ना चला जाए वैल्यू. दैट इज आवर टारगेट. दैट शुड बी द टारगेट ऑफ इंडिविजुअल पर्सन्स. क्लियर? ओके. नाउ अनदर फेज वेयर वी कैन कीप आवर मनी इज समथिंग कॉल्ड इक्विटी. पैसा को हम कहाँ पर रख सकते हैं? इक्विटी में. अब इक्विटी का बात जनरली सुना नहीं है, स्टॉक मार्केट का बात सुना है. ये स्टॉक्स में कोई भी कंपनी का. व्हेनेवर आई से स्टॉक्स, क्या होता है कि स्टॉक का बात सुनते ही आदमी लोग तो पहले बोलते हैं ना भाई रिस्की है, but it has good returns, 16% 16 to 18% returns है. But if you understand business and invest in long term, then you have it. और आपको आज डाला पैसा कल चाहिए, so it's a very very risky business. No one can predict the markets, what's going to happen, right? So stock in that case is very very risky. But if you understand stock in the long run, it's the best business because equity gives the best return among all class of assets. It is proven in history. ओके, सो स्टॉक ये बात में आता है. यू कैन इन्वेस्ट. अब आप मुझसे पूछोगे कि रियल एस्टेट भी तो है सर, एंड रियल एस्टेट है ना सर, पर यू कैन नॉट बाई रियल एस्टेट विथ 1 लाख रुपीज़, राइट सर? ओके, द मिनिमम अमाउंट इज़ 1 लाख आई एम कंसिडरिंग. तो 1 लाख रुपीज़ आप यहाँ लगा सकते हो. दैट्स व्हाट आई एम शोइंग. मैं रियल एस्टेट का बात उठाऊंगा ही नहीं बिकॉज रियल एस्टेट इज नॉट पॉसिबल विथ 1 लाख रुपीज़. होगा आपको बैंक लोन भी नहीं देगा 1 लाख रुपये से. सो आई एम नॉट, दैट इज वाई आई एम नॉट कंसिडरिंग द फैक्टर्स ऑफ रियल एस्टेट. क्लियर? But again, when you invest in stocks, you should understand the business. Without understanding business is actually gambling with the stocks. Okay, let us proceed with the next one. पैसा को हम derivative markets में डाल सकते हैं, which is very very common in India because India has the biggest derivative markets. Okay, there are basically 4 categories of derivatives. What are the 4 categories of derivatives? 2 junction में divide होता है. एक को बोलता है OTC derivative market and the other is called exchange traded derivative markets. OTC मतलब क्या है? Over the counter derivative markets. 2 होता है, फॉरवर्ड होता है, स्वैप्स होता है. एंड एक्सचेंज ट्रेडेड डेरिवेटिव मार्केट्स क्या क्या होता है? फ्यूचर होता है, ऑप्शंस होता है. ऑप्शंस के बारे में तो सबने सुना होगा, ऑप्शन ट्रेडिंग. हाँ, गवर्नमेंट ने बैन वगैरह लगा दिया, वो सब, ऑल दोज थिंग्स. तो दैट इज़ नॉट द एग्जैक्ट केस. दूसरा भी किस होता है, दिस आर गुड थिंग्स बट पीपल यूज इट इन द फेज ऑफ गैम्बलिंग. अब वहाँ पर क्या ही किया जाए, राइट? सो फॉरवर्ड. अब OTC मतलब क्या है कि दिस आर पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स. ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट्स होता है? दिस आर पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट फॉरवर्ड और स्वैप्स, दिस आर पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स. मतलब 1 and 1 पार्टी, एक पार्टी और एक पार्टी के बीच में होता है. और फ्यूचर्स ऑप्शंस क्या होता है कि दिस आर ट्रेडेड इन एक्सचेंजेस. मतलब कोई भी जहाँ पर जैसे NSE में ट्रेड होता है, दे आर ट्रेडेड इन BSE. दिस आर नॉट ट्रेडेड इन NSE एंड BSE बट दिस आर ओके फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, जिसको FNO बोला जाता है. तो FNO आर ट्रेडेड इन NSE एंड BSE. क्लियर? बट स्वैप्स, forwards, they are not traded. We will explain individual factors, individual derivatives in upcoming videos, don't worry, okay, in our trading series. So I'll just explain in short what is exactly a derivative, right? A derivative का मतलब क्या है, we will be understanding through it. So a derivative is a financial security with a value that is reliant upon or derived from an underlying asset or group of asset. कुछ समझ में नहीं आया. Okay, let us see what it means. Point is कि कोई भी asset होता है, okay, उस एसेट, कोई भी एसेट क्लास है,
उस एसेट के ऊपर मैंने कोई बेट लगा दिया कि ये एसेट, सपोज़ कोई स्टॉक है, सपोज़ कोई भी कंपनी का स्टॉक है जो सपोज़ 10 रुपये से लेके 15 रुपये जाएगा, मुझे पता है। कैसे पता? दैट्स नॉट अ क्वेश्चन। क्वेश्चन इज़ कि सपोज़ मुझे पता है कि 10 रुपये से लेके 15 रुपये जाएगा, एंड आई प्ले एन ऑप्शन, मैं बोलता हूँ कि ये ऊपर जाएगा, सो पर पॉइंट मूवमेंट में मैं 500 रुपये का प्रॉफिट खाऊंगा। सो दैट इज़ पॉसिबल। ओके, 500 या फिर ज़्यादा, कितना पैसा लगा के, मिनिमम अमाउंट करके, मिनिमम इन्वेस्टमेंट विथ मैक्सिमम रिटर्न्स। सो दिस इज़ पॉसिबल, दिस इज समथिंग कॉल्ड डेरिवेटिव्स। तो कोई एसेट्स जो भी चल रहा है, एग्जिस्टिंग एसेट्स के ऊपर जो भी काम करता है उसको डेरिवेटिव बुलाते हैं। कहाँ पर लागू होता है? इट अप्लाइज ऑन स्टॉक, एज आई गिव एन एग्जाम्पल। बॉन्ड्स के ऊपर लागू होता है डेरिवेटिव्स। कमोडिटीज़, कमोडिटीज़ मतलब क्रूड ऑयल, राइट, क्रूड ऑयल्स, गोल्ड के ऊपर लागू होता है, सिल्वर के ऊपर लागू होता है। ओके, एवरीथिंग, एवरी सिंगल थिंग कम्स अंडर डेरिवेटिव्स। मतलब स्वैप्स बात कर लो, फ्यूचर्स बात कर लो, ऑप्शंस बात कर लो, फॉरवर्ड्स बात कर लो, एवरीथिंग कम्स अंडर दिस पर्टिकुलर फैक्टर। नेचुरल गैस, कुछ भी चीज़, दिस आर द थिंग दैट कम्स इन। नेक्स्ट, इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव। इंटरेस्ट रेट के ऊपर भी डेरिवेटिव्स लागू होता है। ओके, दैट्स नॉट अ बिग थिंग। इंटरेस्ट रेट्स मतलब यूएसडी INR, ओके, यूएसडी INR इसके ऊपर लागू होता है। यूएसडी, JPR, जापानी करेंसी, ये सब एवरीथिंग कम्स ऑन विथ दिस काइंड ऑफ थिंग। बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, डेरिवेटिव वहाँ पर भी लागू होता है। हर जगह डेरिवेटिव, व्हेनेवर देयर इज एन एसेट, derivatives are applied there. And details video on derivative I will upload a derivative. I'm just example दे रहा हूँ. Hope you have understood. Still you have any question, do let me know. Next, market indices. जैसे example देता हूँ, निफ्टी 50 का बात नाम तो सबने सुना होगा, निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 इंडेक्स है, उसको इंडेक्स बुलाते हैं, इंडाइसिस। तो नो वन कैन बाई निफ्टी 50, राइट। निफ्टी 50 का एक स्टॉक ले लिया, सुना है कभी? नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। बट वही निफ्टी 50 को, सपोज निफ्टी 50 24,000 से लेके 24,010 तक जाएगा, मुझे पता है। दिस इज द मूवमेंट ऑफ निफ्टी 50। आई कैन प्लेस एन ऑप्शन, ओके, आई कैन प्लेस एन ऑप्शन एट देयर, आई कैन प्लेस फ्यूचर आउट देयर। ऑप्शन और फ्यूचर में चला सकता हूँ कि मुझे पता है यहाँ से यहाँ तक जाने वाला है बोल के, अकॉर्डिंग माई एनालिसिस, राइट। हाउ यू हैव हर्ड अबाउट बैंक निफ्टी? जो भी जुआड़े लोग हैं, दे हैव हर्ड अबाउट बैंक निफ्टी, द फैक्टर्स, राइट। तो बैंक निफ्टी में क्या होता है? बैंक निफ्टी इज एन इंडेक्स। तो इंडेक्स को तो ट्रेड नहीं किया जा सकता, मतलब यू कैन नॉट बाई एंड सेल एन इंडेक्स, बट इंडेक्स को एसेट बनाकर, राइट, इंडेक्स को एसेट बनाकर उसके ऊपर डेरिवेटिव लागू किया जाता है। दैट्स डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब उसके बाद वहाँ पर FNO चालू किया जाता है। FNO डायरेक्टली, दैट इज़ वाई वी यूज FNO, कि कोई भी एसेट के ऊपर FNO लागू किया जा सकता है, इफ द ब्रोकर अलाउज, करेक्ट। दैट इज द सिंपल फंक्शन ऑफ derivatives. Am I clear with it? Okay. Now let us understand that after understanding derivatives and all other factors, the most important thing a person should do is understand where a person is exactly investing their money. Where is the person investing their money? Just like this particular cow. तो ये काव दूध तो दे रहा है ना, तो कोई भी गाय है जो दूध देता है, पॉइंट यहाँ पर है कि वो दूध अगर मैं ज़्यादा देर तक रख दूँ, दैट विल गेट डिकेड. Similarly, just think this milk to be cash. Now, if you keep this cash for a long time, what happens? It will get decayed. It will get devalued by inflation. ये devalue ना हो, इसलिए we use multiple factors. Those factors I have shown you. Hope you have understood. Right? In next classes, we will be starting with the functions of derivatives. Thank you.